Good morning, dear students. Now, today we will see the experiment number 4. That is, write a simple program to calculate the area and perimeter of rectangle and the area and circumference of the circle. These two programs are asked in practical number 4. Now, we will see the practical number 4 or session number 4. Now, from this practical following skill, you have to know, that is, develop a program to solve the broad based computer related problems and scientific based problems. You have to know how to develop a C program related computer related problem and scientific related problem can solve by writing the algorithms of given problem, then drawing the flow charts of the given algorithm, then develop a program using some variables, constant and arithmetic expression, and then debug and compile the program. And fifth one is to execute and run your program using the Turbo C and GCC compiler. These are the practical skill how to implement in this program, through this program. Now we will see our title of this experiment or practical, that is calculate area and perimeter of the rectangle. For that we will see one algorithm, that is calculating the area of rectangle. For that we know the area of rectangle, formula of area of rectangle, that is length multiplied by breadth. Then perimeter of rectangle, that is, you know the formula of perimeter of rectangle, that is L multiplied by P. This is the formula. Okay, here we will change the formula, that is here plus perimeter formula is 2 multiplied by L plus B, and if you know the formula, then you can easily write the algorithm of any problem. First step is start, second step is declare the variable, required variable. We declare here A variable for area of rectangle, P variable for perimeter of the rectangle, L for length and B for breadth. Just see the arrow cursor. Then step number 3, read the length and breadth, that is the input variable L and B, and we will pass these two variables for area of rectangle. A is equal to L multiplied by B. It is the formula, just we write for calculating the area. Then perimeter is equal to 2 multiplied by L plus B, that is the perimeter of rectangle. Just calculating the area and perimeter, then display the area and perimeter and the end of the algorithm. This is the algorithm step by step procedure of given problem, and our problem is right here, that is calculate area and perimeter of rectangle. This is the problem and this is the algorithm step by step procedure. If once we know the step by step procedure algorithm, then you can easily write the programs. Just write here, you will see. First step start, so we write here void main. Second step declare the A, P, L, B variable. So L and B, length and breadth, these are the integer variable, Purna digit value. So we write here integer L and B. Then long integer area and perimeter. Area and perimeter, it is a long result, it may be. So we declare as a long integer. Long integer, it is also data type, integer is also data type. For this program we require the two input variable, that is length and breadth. So we write here printf, enter the length and breadth, and by using scanf function we just scan the values whichever is
whichever we entered through a keyboard, that value is assigned to the L and B variable. Ampersand L, it holds it holds the address of L variable, it holds the address hold the address on B variable. B variable में वो जो आप वैल्यू एंटर करोगे वो B में सेव हो जाएगा, और जो फर्स्ट वैल्यू एंटर करोगे वो L में सेव हो जाएगा. That is the length, and second value will be print. And that by using that two value, L and B value, we process the formula, that is area of rectangle. A is equal to L multiplied by B. L is the length and B is the breadth. The multiplication of these two variables then gave the area of rectangle. Same way we can process the formula perimeter of the rectangle. So we write here 2 multiplied by in bracket L plus B, length plus breadth, and after getting the result we'll get the perimeter of rectangle. Now display it by using the printf function. Here step number 5 is displaying A and P. For displaying it means printing. So we write here printf area of rectangle is a %d. Area is a integer type of variable and L type of variable. So we write here LD, long %d. LD or D, nothing is a problem here. So you can write LD or D, then display the related variable for this rectangle, area of rectangle. Area of rectangle के लिए respective variable ये है, so we write here ये, and perimeter of rectangle is %d है, so variable name है उसका P, तो हमने P यहाँ पे display किया. In this way we calculate the area and perimeter of the rectangle. Okay, this is the program which is asked in the practical number 4. Now we will see the another program, that is the area and circumference of the circle. For that we write here the algorithm of given problem, that is start, declare the area of circle, and C for the circumference, and P is the phi value and the phi constant value is 3.14, and R is the radius of the circle. Now step number 3, that is the read the radius. Now we will read the radius R, it is the variable name, and now fourth step that will be process the formulas, that is area and circumference. Area is equal to pi multiplied by R square. So we write here pi multiplied by R multiplied by R. This is the formula of area of circle, and C is equal to 2 pi multiplied by R, that is the circumference of circle. That is the circumference of circle. Now we after getting the result we just display the A and C. A means area and C means circumference. Whatever variables we declared here, that variable we process here, and that variable only display here. That is the step-by-step procedure of given problem. That is the algorithm. This is the algorithm of area and circumference of the circle. Now this algorithm will represent by using the C program, C code or C syntax. For start we write here white main and declaring the A and C variable. So we write here integer pi is the constant value. So pi is equal to 3.14 comma R semicolon, that is the end of statement. Then the result will be long or floating type. So we write here long float or long double. We declared here long double A and C. Enter the radius of circle, scan of %d and %r, and by using R variable we will get the radius of circle. Here declare the R and here read the R. That is step number 3. That is scan the radius, read the radius. Once we know the radius of circle, then we will process the formula, that is the area and circumference. Area is equal to pi multiplied by R square, and circumference is equal to 2 pi multiplied by R square. Here the formula is some changes. Formula, just see the formula. Perimeter formula, that is pi
2 pi r, that is the formula of perimeter, and that will be right here. Circumference of the circle is 2 pi r, and once we get the area and circumference, then we will display it on screen. That is step number 5 by using the printf function. So we write here printf area of circle is the %df. Double is the data type, having a floating data type a and c. So we write here %df, and a is the respective output variable that holds the result, and it holds the area of circle. So we write here a variable a. It is the result variable, output variable. Same way, c variable, we display the c variable, and c it is used for circumference of circle, that is a %df, and displaying the c. In this way, we studied here the practical number 4, that is write a simple program to calculate the area and perimeter of the rectangle and the area and circumference of the circle. In this way, we studied here algorithm programs. Now we will see the flow chart of it. For flow chart, you know the pictorial representation, it means the flow chart. So pictorial representation for circle operation, that is the first one is a start, declare the area of circle, circumference of circle. We require the constant value pi, t 3.14 r. In a symbol, a rectangle symbol, we write here to declare the variables, input variable as well as the output variable as well as the constant values, that will be declared here. Then we require the radius of circle, so we write here read r in a palindrome, parallelogram. In a parallelogram symbol, we read or displaying the variables, input variable as well as output variable. For that we use the parallelogram. So this parallelogram we use for reading the r radius value. And after radius, getting the radius, we process the two formula, that is the area and circumference. So for area, we will use here a variable, a is equal to pi multiplied by r for calculation area of circle. Then circumference of circle, c is equal to 2 pi r, that is the formula. Once we get the result, then result will be displayed on screen by using the parallelogram, then stop. In this way we write or draw the flowchart or given problem statement, practical number 4. And another B part is to calculate the area and perimeter of the rectangle. For that we require the variables, input variable as well as output variable. Input variable is A, P, L and B, length and grid. For length we use the L and B, and for output variable we use the A and P. Now read the length values and breadth values. Once we know the length and breadth value, then we calculate the A is equal to L plus B and perimeter is equal to 2 multiplied by L plus B. In this way we get the area of rectangle and perimeter of rectangle. If we know the area and perimeter, and just display it on screen by using printf function, that is print A and print B, and then stop. In this way we studied here the flow chart also. Now second part, some practical questions asked in your manual, that is write a mathematical function to find the square of a number. अगर आपको नंबर का एक स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो which formula mathematical functions we need? So we write here yes is the variable, output variable, and number multiplied by number, that is the formula for square of any number, to finding the square of any number. One is the any value or any number, and the multiplication of that number is square of a given number.
This is the answer. Now some comments on in above C program. जो आपने अभी ऊपर जो प्रोग्राम देखे हैं वो प्रोग्राम में आपको कुछ कमेंट पास करना है, कुछ कमेंट लिखना है। तो आप वो प्रोग्राम के रिलेटेड 4 फॉर्मूले जो है वो 4 फॉर्मूले के रिलेटेड आप कमेंट्स लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, द फॉर्मूला इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला इज देन perimeter of the rectangle is and circumference of circle is. These 4 comments you can write there in your manual and just implement it. Now write a program to interchange the value of 2 variables. 2 variables लेना है यूजर के थ्रू, उनको आपको इंटरचेंज करना है, स्वैप करना है, एक्सचेंज करना है उनकी वैल्यू। सपोज अगर आपने a वैल्यू एंटर की है, अगर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, तो a की वैल्यू b को देना है और b की वैल्यू a को देना है। It means interchange the value of 2 variables, that is exchanging, swapping and interchanging. So this program we will see in this practical also, and another program, that is write a program to reverse the given number. आपको एक नंबर एंटर करना है और वो नंबर को आपको रिवर्स करना है। तो ये जो प्रोग्राम है, 2 प्रोग्राम आपको आपके मैनुअल में लिखना है। तो लिखने के पहले आपको वो समझ लेना है उसका एल्गोरिथम और उसका प्रोग्राम, उसका फ्लो चार्ट भी आप आपके लैब मैनुअल में लिख सकते हो। Now we will see here the program to interchange the value of 2 variables. The first step is start, then read the number 1, number 2. 2 नंबर लगेंगे, तो नंबर 1 एक वेरिएबल है, नंबर 2 is another variable, and we write the logic. Step number 3, just save the number 1 in a temporary variable. So temporary number 1's value assigned to the temporary variable and number 2 value assigned to the num1. मतलब नंबर 1 की वैल्यू जो थी उसके ऊपर ओवरराइट की वैल्यू नंबर 2 की, मतलब नंबर 2 में जो वैल्यू थी वो हमने अभी नंबर 1 में असाइन की और नंबर 2 को हमने टेम्पररी में जो वैल्यू थी वो वैल्यू हमने नंबर 2 को असाइन की। मतलब नंबर टेम्पररी में क्या है, अभी नंबर 1 है, तो नंबर 1 indirectly assigned to the number 2 and number 2 indirectly assigned to the number 1. That is the interchange. By using a third variable, that is a temporary variable, we can interchange the 2 variables value. Okay, it is our problem statement, and for that problem statement we write here the algorithm. Then after interchanging the values of number 1 and number 2, then we will print the given number, that is num1 and num2. We displayed here, that is the algorithm of given problem statement, and we will implement this algorithm in a C code, a C language or C syntax. So we write here void main, that is the start of program, then integer number 1, number 2 and temp variable. We need the 3 variables, that is the number 1, number 2 and temp variable. Temp is a temporary variable, it holds the temporary value of number 1. Now we will print the one statement on screen, that is enter 2 number. ये स्टेटमेंट अगर जब स्क्रीन पे देखेगा तो देखने को मिलेगा, तब आप 2 नंबर एंटर करोगे। जो फर्स्ट नंबर एंटर करोगे वो नंबर 1 में से होगा और सेकंड नंबर जो एंटर करोगे वो नंबर 2 में से हो जाएगा। और वो जो नंबर है वो कौन से टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं, परसेंटेज टाइप के हैं। सो वी राइट हियर परसेंटेज फॉर नंबर 1 एंड सेकंड परसेंटेज फॉर नंबर 2। और यहाँ पे एम्परसेंड लिखना आपको भूलना नहीं है। अगर आप ये भूल जाते हो एम्परसेंड लिखना, तो नंबर 1 में एक कौन सी तो गार्बेज वैल्यू हो जाएगी, नंबर 2 में भी कौन सी भी गार्बेज वैल्यू हो जाएगी। आपका रिजल्ट गलत आ सकता है, रॉन्ग आ सकता है। तो आपको यहाँ पर एम्परसेंड ये लिखना मस्ट है, कंपलसरी है। हर एक नंबर स्कैन करते समय, इनपुट नंबर स्कैन करते समय, वैल्यू स्कैन करते समय उसके पहले एम्परसेंड लिखना
it is must, it is required. Once we get the values of number 1 and number 2, then we use the logic, use the code for exchanging or interchanging the two variables. So we write here step number 3, that is number 1 assigned to the temporary variable who hold stored in a temporary variable, and number 1 value we will change by assigning number 2 value. नंबर 2 में जो भी वैल्यू है वो हमने अभी नंबर 1 में असाइन किया, मतलब 2 नंबर की वैल्यू 1 नंबर को मिल चुकी, और नंबर 2 में हमें टेम्पररी वैल्यू असाइन करना है. सो वी राइट हियर 10 assigned to the num variable, number 2 variable. In this way we interchange the values and variable. Then printf after interchange number 1 is equal to %d प्रिंट करेंगे, और नंबर 2 इज इक्वल टू %d दूसरा नंबर प्रिंट करेंगे. ये जो %d यहाँ पे दिखा रहा है, ये %d इट मीन्स नंबर 1 है, ये %d इट मीन्स नंबर 2 है. ओके, तो ये स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा आफ्टर इंटरचेंजिंग नंबर 1 %d मीन्स ये वाला नंबर, %2 मीन्स ये वाला नंबर. आपको कॉमा डबल कोट में जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा. यहाँ पर इज इक्वल टू %d है, %d मतलब ये तो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन ये इसके रिस्पेक्टिव कौन सा वेरिएबल है, पहला नंबर 1 है, तो ये नंबर 1 में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी. और नंबर 2 इज इक्वल टू %d, ये %d जो है वो नंबर 2 के लिए है, 2 में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. And that is the last step, that is the stop. So we write here get ch. In this way we start the program and end the program and execute it, compile it first and run it. In this way we perform the IO skills related to this experiment. That is first one, read the problem statement, then write the algorithm, then write the flow chart, then write the program, then compile the program, and fifth one is execute the program. In this way we run and understand your problems. Okay, here we not written the flow chart, but you can draw the flow chart in a manual also. These are the 7 steps for necessary steps for writing the pictorial representation, drawing the pictorial representation. By using these steps you can write the flow chart in your manual also. Okay, now we will see the second fourth program related these practical number 4, that is to understand the variables, constant and expressions. So here writing the programs related to reverse the given number. आपको नंबर को क्या करना है, रिवर्स करना है. ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है आई थिंक. सो ये जो है वो प्रोग्राम जो है आपका रिवर्स द नंबर है. आप यहाँ पे देख सकते हैं रिवर्स द नंबर को आपको रिवर्स करना है. तो ये नंबर रिवर्स करने के लिए आपको एक ऑपरेटर मालूम होना चाहिए. दैट ऑपरेटर नेम इज द mod operator and divide operator. By using mod operator we will get the remainder, and by using divide operator you can divide the numbers. Okay, तो अभी हम यहाँ पर ले रहे हैं एक इनपुट नंबर, इंटीजर नंबर. तो इनपुट नंबर के लिए हमें n वेरिएबल लगेगा. रिवर्स के लिए रिमाइंडर के लिए, रिवर्स के लिए हमने रिवर्स की वैल्यू 0 लिखी है, और रिमाइंडर की वैल्यू इनिशियली रिमाइंडर एक वेरिएबल हमें लगेगा, वो भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ. These are the necessary variables for writing the programs. So n is the input variable, reverse is the initial value of reverse number is 0, and reminder will get here reminder.
entering the numbers by using printf function. Enter the number message on screen, and after reading this message, we will enter one number, 5-digit number, 3-digit number. Here we entered 4-digit number, just like this. 2, 3, 4, 5. These are the 5-digit number we entered here, and that number value assigned to the n variable. n नंबर में वो वैल्यू आ चुकी है। अभी हमें क्या करना है, चेक करना है while लूप रिपीटेशन ऑफ टास्क के लिए हम while लूप यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है while n नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये n की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ये कंडीशन हमने यहाँ पे डाली हुई है। तो ऑब्वियसली s की वैल्यू जो है वो n की वैल्यू जो है वो 2, 3, 4, 5 है। इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। ये कंडीशन ट्रू है, इसके वजह से वो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाएगा। इसके अंदर जाने के बाद उसे एक रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, मतलब लास्ट का जो 5 डिजिट है हमें वो कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट करने के लिए हमें ये नंबर को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे n mod 10 ऐसे किया। n मतलब क्या है हमारा, ये वाला नंबर 2, 3, 4, 5, ये वाले नंबर को हमने 10 से डिवाइड किया। 10 से डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर की वैल्यू मिली क्या, 5। ये लास्ट वाला जो डिजिट है 5, ये हमें मिला, दैट इज द रिमाइंडर। और हमें रिवर्स का फॉर्मूला लिखना है, रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस रिमाइंडर। तो रिवर्स की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 0 आया, और 0 में हमने ये रिमाइंडर 5 आया था, वो 5 ऐड किया, मतलब ये रिवर्स नंबर में हमें फर्स्ट नंबर मिला 5। ओके, 5 मिला। अभी हमें क्या करना है, ये 4 डिजिट था, उसका रिमाइंडर तो हमें मिल चुका, अभी इसको 3 डिजिट करना है। तो 3 डिजिट करने के लिए हमें उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है n डिवाइड इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये कैसे हो सकता है, n इज इक्वल टू n डिवाइड 10, ऐसे भी ये हो सकता है। ठीक है, मतलब उसका फॉर्मूला ऐसे है, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। मतलब n जो नंबर है 2, 3, 4, 5, उसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो पूर्ण डिजिट हमें मिलेगा, दैट इज 2, 3, 4, ये मिलेगा। देन दैट इज द न्यू नंबर, n वैल्यू इज अ 3 डिजिट नंबर अभी हो गई है, दैट इज 2, 3, 4। और ये n वैल्यू अभी हम ऊपर जाएंगे, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन हम यहाँ पे ये प्रिंट करने के लिए, ये स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि ये कंडीशन अभी तक फॉल्स हुई नहीं है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। तो कर्सर जो है वो अगेन गोइंग टू दिस कंडीशन, दैट इज व्हाइल n mod is equal to n not equal to 0। n की वैल्यू क्या है, 2, 3, 4 ये वैल्यू है, और 2, 3, 4 is not equal to 0, it is a true condition। So we write once again we will going to these curly braces and we'll get here reminder। तो नंबर क्या है, n 2, 3, 4 है। 2, 3, 4 को ये मतलब ये 2, 3, 4 ये 3 डिजिट को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आ जाएगा 23 और रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो ये 4 वैल्यू जो है वो रिमाइंडर में सेव हो चुकी। अभी ये 4 वैल्यू अभी हमें किस में ऐड करना है, रिवर्स प्लस 10 में ऐड करना है। तो लास्ट रिवर्स नंबर की वैल्यू क्या आई थी, सेव हुई थी 5। 5 प्लस 10 मतलब 50, और 50 प्लस अभी जो 4 आया था 50 प्लस 4 दैट इज 54। तो ये रिवर्स में 54 ये वैल्यू सेव हो चुकी है। और n जो है, n क्या हो जाएगा, n मतलब 2, 3, 4 है, इसको डिवाइड बाय 10 किया तो ये n जो है वो 23 आया अभी। तो ये 23 आने के बाद वो ऊपर चला गया, ये कंडीशन चेक करने के लिए 23 नॉट इक्वल टू 0, यस कंडीशन इज अ ट्रू, n मींस 23 नॉट इक्वल टू 0 है, सही है ये कंडीशन। तो ये रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए अंदर आएगा, और रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी, 23 mod 10। तो रिमाइंडर आएगा हमारा 23 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 2 आएगा, और रिमाइंडर जो है वो 2 आएगा, सॉरी 3 आएगा, और ये 3 वैल्यू ये रिमाइंडर वेरिएबल में सेव हो जाएगी। और लास्ट रिमाइंडर हमारा क्या था, 54
54 multiplied by 10 that is 540 प्लस रिमाइंडर जो आया है अभी 3, मतलब 540 प्लस 3 that is रिवर्स नंबर 543, 543 ये रिवर्स नंबर आया। और अभी यहाँ पे n हमारा नंबर था 23 डिवाइड बाय 10 और रिजल्ट आएगा हमारा अभी 2 आएगा, n की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे चेक करने के लिए आ गया। 2 नॉट इक्वल टू 0, 2 मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है मतलब ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। तो यहाँ पे 2 मॉड 10, 2 से तो 10 से 2 को डिवाइड नहीं होता है, तो रिमाइंडर 2 आया। और ये 2 रिमाइंडर हम आगे ये प्रोसेस में, ये फॉर्मूला में प्रोसेस करेंगे। दैट इज रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 और रिवर्स की प्रीवियस वैल्यू आई थी 543 मल्टीप्लाइड बाय 3 करने के बाद 5430 आएगा और उसमें रिमाइंडर की वैल्यू 2 ऐड करने के बाद ये रिवर्स की वैल्यू 5432 आएगी। और ये कंडीशन अभी हम चेक कर लेते हैं, तब ये रिजल्ट आता है 0। तो यहाँ पे जाने के बाद ये कंडीशन हो जाती है नॉट सेटिस्फाइड, 0 नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स है। n की वैल्यू 0 है, 0 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पर फॉल्स हो चुकी है। तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगा नहीं और यहाँ पे वो प्रिंट करेगा, प्रिंट रिवर्स नंबर इज इक्वल टू %d एंड रिवर्स में जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। और रिवर्स में क्या आया अभी 5432 ये वैल्यू आई थी और वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। Now in this way we studied here the practical number 4, just calculating the area of perimeter of rectangle, area of rectangle and area of circle and area circumference of circle, interchanging and reverse the number. These 4 programs we done under this practical number 4. If any doubts and query, then you can ask me in a comment box, or you can directly ask on my WhatsApp number. I will reply. Thank you. अभी ये तो हमारा पीपीटी खत्म हुआ, अभी हम देख लेते हैं इसके प्रोग्राम। तो प्रोग्राम करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? For program performance we will going to our MS-DOS prompt। तो मैं यहाँ पे जो आइकॉन है टर्बोसी का उसे डबल क्लिक कर लेता हूँ। ये टर्बोसी का जो हमारा स्क्रीन है ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही टर्बोसी ओपन हो जाता है तो आपको ये न्यू फाइल मिलेगा, तो आपको न्यू में क्लिक करना है, न्यू फाइल लेना है। तो यहाँ पर जो था वो मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं मेरा अभी प्रोग्राम टाइप करता हूँ ताकि कौन सा प्रोग्राम अभी हमें करना है, ये वाला प्रोग्राम, दैट इज simple program to calculate the area of rectangle and perimeter of rectangle. So we write here one code related this, that is first of all you write here include stdio.h, stdio.h this header file, then hash include conio.h header file, then void main start of the program, then get ch, it is the end of program. Okay, and semicolon. We writing here program related rectangle. तो रेक्टेंगल के लिए हमें लेंथ लगेगा, तो लेंथ के लिए मैंने L वेरिएबल लिया हूँ और ब्रीड्थ लगेगा, ब्रीड्थ के लिए B वेरिएबल लिया हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए मैं A वेरिएबल लेता हूँ और पेरीमीटर के लिए P वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, नाउ विल get the values of length and breadth. So we write here enter L and B. B means breadth। आप यहाँ पे पूरे वर्ड में लिख सकते हैं
लेंथ एंड ब्रेड के लिए भी पूरा वर्ड जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो, डबल कोट कंप्लीट कॉमा। और ये वैल्यू जो है वो स्कैन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, स्कैन है, दो वैल्यू रीड करना है तो 2 टाइम्स हमें परसेंट लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वैल्यू जो है हमें एल में सेव करना है, सेकेंड वैल्यू जो है हमें बी में सेव करना है। सो वी राइट हियर %L and %B. Once we get the values of L and B, then we process the formula A is equal to फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, L मल्टीप्लाइड बाय B, L मल्टीप्लाइड बाय B, ये वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यहाँ पे प्रोसेस किया और पेरीमीटर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट L प्लस B, ये वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप प्रोसेस कर सकते हो। इन दिस वे वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। जो भी आया है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करने के लिए प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये लिखना है, तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल लिखिए और ये डबल कोट में जो आया है वो स्क्रीन पे दिखेगा कॉमा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन से वेरिएबल में है, रिजल्ट किसमें है, ये वेरिएबल में रिजल्ट है, तो हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं और सेमीकोलन लिख रहे हैं। और ये अभी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू जो आई है उसमें रिजल्ट आया है, कुछ कैलकुलेशन करके रिजल्ट आएगा, लेकिन वो प्रिंट करने के लिए वो ये नाम का वेरिएबल कौन से टाइप का है इज इक्वल टू करके हमें यहाँ पर %D उसका डेटा टाइप लिखना जरूरी है। तो वैसे जैसे हमने यहाँ पे D लिखा तो वो एरिया प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह हम पेरीमीटर प्रिंट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और %D और P इसमें हमारा रिजल्ट है, तो यहाँ पे रिजल्ट भी डिस्प्ले हो चुका। अभी ये जो है पेरीमीटर न्यू लाइन पे आना चाहिए, इसलिए /n लिखना है। लिसन केयरफुली व्हाट आई सेड हियर दैट विल बी इम्प्लीमेंटिंग टू यू ऑल ऑफ इम्प्लीमेंट आफ्टर लिसनिंग एंड completion of this explanation you can implement in your system. Okay, so this is the program. Here include का I कैपिटल आया है, तो इसके वजह से यहाँ पे 3 एरर आए। देखो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी इंक्लूड, प्रिंट स्कैनर फंक्शन उसको मिल नहीं रहा है, शुड हैव अ प्रोटोटाइप, तो वो प्रोटोटाइप एरर जाने के लिए यहाँ पे हमें इंक्लूड जो प्रॉपर सिंटैक्स है वही लिखना पड़ेगा। और ये प्रोग्राम अगर रन होता है, कंपाइल होता है, तो आपको एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, तो मैं Alt R बटन प्रेस करता हूँ, नहीं तो माउस से क्लिक करता हूँ R पे, तो ये आएगा। तो मैं यहाँ पे लेंथ देता हूँ 4 और ब्रेड्थ देता हूँ 8, तो ये दोनों का रिजल्ट आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 32 एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 24। In this way just we calculate the area of rectangle. आपने उसका फ्लो चार्ट को देखा है, एल्गोरिथम देखा है, अभी आपने प्रोग्राम देख लिया है। ओके, अभी आपको दूसरा वाला प्रोग्राम एक रन करना है, दैट इज अभी इसे सेव करना है। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन यू कैन सेव योर प्रोग्राम इन योर सिस्टम, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 4 अंडरस्कोर प्रोग्राम नंबर 1। In this way you can write your programs in your specified folders. So आपका जो भी स्पेसिफिक फोल्डर है टर्बोसी में PIC नाम का, उस PIC नाम में फोल्डर में आप जो भी एक्सपेरिमेंट है इसी तरह से सेव करिएगा, ताकि आपको आपके प्रोग्राम्स एक्सपेरिमेंट बाद में आपको मिल सके, इजीली सर्च कर सके। तो ये जो नेम है आप नेम से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट का पूरा नाम यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 4 प्रोग्राम 1.cpp ऐसे लिखा है। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ वैसे हमारे प्रोग्राम अभी यहाँ पे सेव हो चुका है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं ओपन कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमें करना, मतलब ये एक्सपेरिमेंट का सेकेंड प्रोग्राम करना है और वो है सर्कल के रिलेटेड है। So we write here as include stdio.h हेडर फाइल ऐड करता हूँ, बाद में include C
वो एन आईओ डॉट डिजिटल ऐड करता हूँ और प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ वाइड मेन से करता हूँ। तो 8ch कर लेता हूँ यहाँ पर 8ch एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड एंटर द रिक्वायर्ड वेरिएबल फॉर अभी हमें पाई वेरिएबल तो पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 होगी। देन हमें एक रेडियस आर नाम का वेरिएबल लगेगा तो आर रेडियस हम लेते हैं। देन फ्लोट रिजल्ट जो आने वाला है वो रिजल्ट जो है वो आएगा हमारा फ्लोट टाइप का। तो वी राइट हियर फ्लोट डेटा टाइप और एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के लिए मैं सी वेरिएबल ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे शॉर्टकट वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर ऐसे भी वेरिएबल लिख सकते हो। एरिया सर्कमफरेंस के लिए पूरा सर्कमफरेंस का स्पेलिंग भी वहां पर आप लिख सकते हो, लेकिन आप फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में आपको बता रहा हूँ। एरिया कैलकुलेशन ये वेरिएबल लिखा, सर्कमफरेंस के लिए मैंने सी वेरिएबल लिखा और ये जो वेरिएबल है उनका रिजल्ट फ्लोट टाइप का आने वाला है, इसलिए मे भी फ्लोट टाइप का आ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको डेटा टाइप जो है वो फ्लोट लिखा है। और रिजल्ट में भी लॉन्ग रिजल्ट भी आ सकता है, मतलब 2 डिजिट 4 डिजिट आ सकता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लॉन्ग फ्लोट ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन और आपको प्रिंट करना है स्क्रीन पे एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल की रेडियस जो है आपको एंटर कर लेना है। तो यहाँ पे एक मैसेज स्क्रीन पे दिखा है और ये मैसेज देखने के बाद आप 100% कुछ वैल्यू एंटर करोगे और वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है। आर जो है मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ इंटीजर टाइप का है, सो वी राइट हियर % और %r में वो वैल्यू आ चुकी है, रेडियस आ चुकी है और जो भी रेडियस आई है वो हमें अभी प्रोसेस करना है एरिया का फॉर्मूला में। तो मैं एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू पाई लिखा। पाई की वैल्यू मैंने ऊपर डिक्लेयर की है, कांस्टेंट वैल्यू है 3.14, पाई मल्टीप्लाइड बाय r ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे आई हमारी एरिया ऑफ सर्कल और अभी हमें कैलकुलेट करना है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल C इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय r, ये उसका फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला प्रोसेस होने के बाद सर्कमफरेंस मिलेगा, ऊपर वाला फॉर्मूला प्रोसेस करने के बाद एरिया मिलेगा और ये इन दिस वे वी विल गेट द एरिया एंड सर्कमफरेंस। नाउ वी विल प्रिंट द एरिया। सो आपको पहले एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ये नाम का वेरिएबल, ये नाम की वेरिएबल में एरिया ऑफ सर्कल है, लेकिन वो कौन से टाइप का वेरिएबल है आपको वेरिएबल का यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा %t। अगर t इंटीजर में रिजल्ट चाहे तो t लिख सकते हैं, लेकिन फ्लोट में चाहे तो f लिख सकते हैं और वैल्यू में भी लॉन्ग रिजल्ट आएगा तो f लिख सकते हो। और उसका ठीक है, और उसका जो डेसिमल फ्रैक्शनल वैल्यू है वो अगर आपको 0.2 डिजिट तक चाहिए तो यहाँ पर आप 0.2 f ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बारीक जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको प्रोग्राम करते समय बताता हूँ, तो आप उसको याद रखना है। सेमीकोलन, कोलन, कॉमा, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको याद रख के प्रोग्राम अंडरस्टैंड कर लेना है और जो भी एरर आता है तो आप इजीली वो उसको रिमूव भी कर सकते हो। अभी हमें प्रिंट करना है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो ये जो रिजल्ट है वो भी प्रोटीन टाइप का है, %0.2 LF फ्लोट रिजल्ट है, इसलिए मैं LF लिख रहा हूँ और C में हमारा रिजल्ट है तो C रिजल्ट डिस्प्ले किया। इन दिस वे वी राइट द C प्रोग्राम, कंपाइल इट, 4th स्टेप एंड 5th स्टेप एग्जीक्यूट इट। अभी एग्जीक्यूट करने के बाद अगर रेडियस में देता हूँ 10 तो रिजल्ट आ जाता है एरिया ऑफ सर्कल 300
एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ जाती है 60। तो आप इसे चेक भी कर सकते हो कैलकुलेटर में। तो ये प्रीवियस स्क्रीन जो है आपको क्लियर करने के लिए CLR या CR क्लियर स्क्रीन ये फंक्शन यूज करना है, ताकि आपका रिजल्ट जो है वो पूरा ना स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। और एक ही लाइन में दोनों आउटपुट आए हैं, एरिया ऑफ सर्कल एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एक ही लाइन में आया है। तो ये आपको न्यू लाइन में अगर चाहिए तो आप यहाँ पे /n लिख सकते हो, ये न्यू लाइन के लिए /n लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो वहां पे चेंजेस 100% हो जाएगा। जैसे कि आप प्रीवियस वाला स्क्रीन पूरा क्लियर हो चुका है, आप रेडियस अगर एंटर कर लेते हो 20 तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाता है 1200, ये रिजल्ट आ जाता है, और सरकमफेरेंस 120.00 ये वाला रिजल्ट आ चुका है। In this way we studied here the second one program, that is circle, circumference and circle area. ओके, अभी उसे सेव करना है तो RDF करो, सेव करो। और एक्सपेरिमेंट नंबर हमारा एक्सपेरिमेंट 4 है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 अंडरस्कोर प्रोग्राम सेकेंड है और .cpp से हम उसे सेव कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रोग्राम। नाउ वी विल राइट द थर्ड वन, that is interchange the values of two variables. So we write here hash include stdio dot h header file, then hash include conio dot header file। ये दो फाइल होने के बाद मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर लेता हूँ। तो वाइड मैन लिखा, एंड ऑफ द प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ /ch, और इन बिटवीन दिस टू फंक्शन यू कैन राइट your program, interchange the program। अगर आपको इंटरचेंज करना है दो वैल्यू तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटीजर num1 एक वैल्यू है, num2 ये दूसरी वैल्यू है, और यूजिंग थर्ड वेरिएबल टेम्पररी वेरिएबल वी कैन स्वैप और इंटरचेंज द वैल्यूज। नाउ प्रिंट हियर, अभी हमें दो नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट एंटर द टू नंबर। दो नंबर एंटर करने के लिए मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले किया, और ये जैसे मैसेज दिखेगा तो पर्सन दो वैल्यू एंटर करेगा। तो दो वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे 2 बार % लिख लेता हूँ, और फर्स्ट नंबर जो है वो %num1 में आएगा, और सेकंड नंबर जो है %num2 में आएगा। और ये दो नंबर सेपरेट है तो इसीलिए मैं यहाँ पे कॉमा यूज कर रहा हूँ। ये डबल कोट के बाद यहाँ पे मैं कॉमा यूज कर रहा हूँ। यही सिंटैक्स आपको अगेन फॉलो करना है, बार बार यही यूज करना है। टेम्पररी इज इक्वल टू नंबर 1 मैंने स्टोर किया, नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 1 की जो भी नंबर 1 में जो नंबर 2 में जो वैल्यू थी वो मैंने 2 की वैल्यू नंबर 1 में असाइन की, और num2 को टेंथ में जो नंबर 1 की वैल्यू थी वो डिस्प्ले की और प्रिंट किया। यहाँ पर प्रिंट किया आफ्टर और इंटरचेंजिंग num1 %d, ठीक है, डबल कोट कंप्लीट num1 यहाँ पे डिस्प्ले किया, प्रिंट किया आफ्टर स्वैपिंग लिखिए, नहीं तो हमारा प्रोग्राम का स्टेटमेंट इंटरचेंज के नाम से है, तो आप यहाँ पे इंटरचेंजिंग लिख सकते हैं। इंटरचेंजिंग num2 इज, num2 क्या आया है, इक्वल टू लिखना है तो इक्वल टू लिख सकते हैं %d num2, ये रिजल्ट यहाँ पे आप शो कर सकते हो। और नंबर 1 इज, ये इक्वल टू यहाँ पर भी लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। इन दिस वे वी डिस्प्लेड हियर आफ्टर इंटरचेंजिंग। आपको रन करना है तो रन करिए, कंपाइल किया, रन किया, रन करने के बाद आपको दो नंबर एंटर करना है 20 एंड 30। नंबर 1 में 20 है, नंबर 2 में 30 है, और आफ्टर इंटरचेंजिंग नंबर 1 30 आ चुका है, और आफ्टर इंटरचेंजिंग नंबर 2 जो है वो 20 आया है। ओके, आप देख सकते हैं प्रोग्राम के आउटपुट में हमने दो नंबर एंटर किए हैं, 20 जो है वो नंबर 1 है और 30 जो है वो नंबर 2 है।
तो नंबर 2 की वैल्यू नंबर 1 में आई है, तो ये यहाँ पर एक स्टेटमेंट डिस्प्ले किया है। नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग नंबर 1 इज 30, नंबर 1 के 30 है, और आफ्टर इंटरचेंजिंग नंबर 2 इज 20, ये रिजल्ट है। अगर आपको जो नंबर यहाँ पर लिए थे बिफोर इंटरचेंजिंग, अगर आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट या बिफोर इंटरचेंजिंग नंबर num1 इज इक्वल टू, नंबर 1 की वैल्यू क्या है, num1 इज इक्वल्स टू %d, और num1 की वैल्यू जो भी है वो डिस्प्ले हो जाएगी। और प्रिंट या बिफोर इंटरचेंजिंग num2 इज इक्वल्स टू %d, और num2 की वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अभी ये जो है बिफोर जो नंबर था वो हमने डिस्प्ले किया। न्यू लाइन पे डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे स्लैश n लिखो, न्यू लाइन पे रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे स्लैश n करो, न्यू लाइन पे रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे स्लैश करो, न्यू लाइन पे रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे स्लैश n करो। अभी ये जो है वो हमने सेटिंग कर ली है। वो प्रीवियस वाला रिजल्ट कैसे आया है, वो उसके प्रीवियस वाला भी रिजल्ट दिखा रहा है, अभी जो हमने प्रोग्राम किया था वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये स्क्रीन में प्रीवियस स्क्रीन और करंट स्क्रीन दोनों भी यहाँ पे शो हो रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, CLR प्रीवियस स्क्रीन जो है वो हमें क्लियर करना है, CLR ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करने के बाद हमारा प्रीवियस स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी वो स्लैश n लास्ट में हमने यहाँ पे देखा एक ही लाइन में पूरा रिजल्ट आ रहा था आफ्टर चेंजिंग नंबर 1 नंबर 2, तो हमने यहाँ पे /n लिखा है, न्यू लाइन में आउटपुट शो किया है। अभी रन कर लेते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो ये रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आप देख लो। मैं नंबर एंटर कर लेता हूँ, फर्स्ट 20 एंड सेकेंड 30। नंबर 1 जो है वो 20 है, नंबर 2 जो है वो 30 है, और आफ्टर इंटरचेंजिंग नंबर 1 की वैल्यू 30 आई और नंबर 2 की वैल्यू 20 आ चुकी है। दिस इज अबाउट द इंटरचेंजिंग। तो इसी तरह नंबर इंटरचेंज कर सकते हैं। हो सकता है ये वाला प्रोग्राम आपको आया था और ये एक्सपेरिमेंट आपको अभी सेव करना है, तो आप यहाँ पे सेव एज करके एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में से ये प्रोग्राम नंबर 3 है .cpp के नाम से आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, जैसे कि उसका नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है। और एक लास्ट प्रोग्राम आपको करना है, दैट इज रिवर्स द नंबर को रिवर्स करना है, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा फर्स्ट #include stdio.h लिखो, बाद में #include /cio.h लिखो, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, वाइड मेन लिखो और get ch लिख लीजिए। और आपको प्रोग्राम रिवर्स नंबर का प्रोग्राम करना है, तो इंटीजर एक नंबर लेना है, तो आप नंबर एक वेरिएबल ले लो n, रिवर्स के लिए v नंबर लिखो, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, और रिमाइंडर के लिए ram ये वेरिएबल ले लो। ठीक है, और प्रिंट या आपको क्या करना है, एक नंबर एंटर करना है, तो एंटर एनी नंबर, ये एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करो। ये मैसेज देखने के बाद आप कुछ वैल्यू एंटर करोगे, वो वैल्यू जो है वो आपको स्कैन करना है % और सेव करके नम किस में रखना है, n में रखना है। तो n वैल्यू आपकी इसमें आ चुकी है। ठीक है, तो n वैल्यू आपकी यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, अभी ये जो नंबर आया है वो हमें कंडीशन में डालना है, व्हाइल कंडीशन। हम रिपीटेशन ऑफ टास्क करेंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमें रिपीट करना है, रिवर्स का फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिजाइन किया है। हर जगह पे हम फॉर्मूला प्रोसेस करते हैं, तो अभी इसे हमें रिवर्स नंबर, जो भी एक नंबर एंटर करने वाले हैं
4 डिजिट का, उसको रिवर्स करने के बाद उसके लास्ट डिजिट से डिस्प्ले होने वाला है। तो रिवर्स इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला ये लिखते हैं, रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 और प्लस जो भी रिमाइंडर आया है वो उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इट इज द फॉर्मूला। अभी ये फॉर्मूला के लिए हमें रिमाइंडर लगेगा, तो रिमाइंडर हम कैलकुलेट करेंगे, REM इज इक्वल टू जो भी नंबर है, नंबर n mod 10, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिलेगा और जो भी रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे ऐड करेंगे और नंबर हमें चाहिए n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, जो भी वैल्यू है वो हम बाद में n में सेव करेंगे। और ये जो फॉर्मूला है रिपीट, ये टास्क हमें रिपीट करना है। तो while n नॉट इक्वल टू 0, ये है कि नहीं ये चेक करेंगे। when this condition is true, then we repeat this formula again and again, and after the end of statement our reverse number is getting, and that reverse number will be displayed here, reverse of given number num ए, वो कौन से टाइप का रिजल्ट है, परसेंट टाइप का रिजल्ट है। तो मैं यहाँ पे नम जो है, सॉरी n जो है, n में हमारा रिजल्ट है, वो नंबर है, वो यहाँ पे डिस्प्ले किया। ठीक है, अभी n डिस्प्ले हो चुका है, तो आप इसे रन भी पहले कंपाइल करिएगा, तो कंपाइल करने के बाद 0 एरर आ रहा है, तो आप इसे रन करके देख सकते हो। रन करिएगा, एंटर एनी नंबर में नंबर 2 3 4 5 ये जो नंबर है वो यहाँ पे लिखा है। रिवर्स नंबर स्क्रीन पे तो नहीं आया, इसे प्रीवियस स्क्रीन जो है उसे हम क्लियर कर लेते हैं। पहले CLR प्रीवियस स्क्रीन क्लियर किया। ओके, अभी फॉर्मूला प्रोसेस किया, यहाँ पर रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 10 और रिवर्स का फॉर्मूला है रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस रिमाइंडर REM, और n जो है हमारा जो भी n आया है वो n यहाँ पे डिस्प्ले किया। ठीक है, तो इक्वल्स टू नंबर, अब ये 4 डिजिट का नंबर ले रहा है, 2 3 लेते हैं। रिवर्स नंबर इज अ परसेंट, रिवर्स नहीं हुआ। एंटर n, रिवर्स REV इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू 0 है और रिमाइंडर हमने REM लिया हुआ है, REM इज इक्वल टू n mod 10, n नॉट इक्वल टू 0। रिवर्स जो है हमारा वो रिवर्स की वैल्यू जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था 0, तो वो 0 ही ले रहा है और रिजल्ट 0 दिखा रहा है। यहाँ पे प्रिंट करके देख लीजिएगा। फर्स्ट प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट किया %d, हम रिमाइंडर डिस्प्ले करेंगे, रिमाइंडर REM, देन प्रिंट किया REMD %d, REMD डिस्प्ले करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है उनका वैल्यूज का।
एंटर नंबर 1 2 3 करो, रिमाइंडर 1 आया, रिवर्स करके 3 2 1, reverse of given number is %d. Enter in number 3 2 1 3 2 1, reverse. अच्छा, तो हमें यहाँ पे रिवर्स नंबर प्रिंट करना है, REV में हमारा रिजल्ट है। हम यहाँ पे नंबर प्रिंट कर रहे थे, नंबर की वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 है, ठीक है, क्योंकि हमारा रिवर्स किस में आया है, ये फॉर्मूला में हमारा रिवर्स नंबर आया हुआ है। तो रिवर्स नंबर डिस्प्ले करने के लिए हमें रिवर्स ये करना पड़ेगा। Alt C करिएगा, हो गया। और ये प्रोग्राम कंपाइल करने के पहले हमें क्लियर करना है स्क्रीन, CLR कर लो। तो नंबर 1 2 3 4 5 ये लिखो, और इसका रिवर्स क्या आया, तो लास्ट डिजिट 5 था 5, सेकेंड लास्ट डिजिट 4 4 3 2, तो 2 3 4 5 का रिवर्स करने के बाद 4 5 4 3 2 ये आएगा, दैट इज द रिवर्स ऑफ गिवन नंबर। तो ये वाला प्रोग्राम जो है, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा थर्ड चैप्टर में हमें ये पूरा प्रोग्राम इलस्ट्रेट करके देखना है, समझ लेना है। Before that you can write this one in your program. In this program you process here 3 formulae. First formula is by using mod operator, second formula using multiplication, addition operator, and third formula is divide operator. तो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करके ये प्रोग्राम किया है, और ये नॉट ऑपरेटर यूज करके ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो दीज आर द एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है, ये वेरिएबल है, रिमाइंडर वेरिएबल है, और ये ऑपरेटर है। जैसे कि मैंने आपको सेकेंड यूनिट में बहुत सारे ऑपरेटर बताए थे, तो उसमें से कुछ ऑपरेटर लेके ये वाले प्रोग्राम, ये वाले एक्सपेरिमेंट में आए हुए हैं। तो ये वाला प्रोग्राम हमने इस तरह किया और एग्जीक्यूट भी किया। तो रन करना है तो आप रन करके भी देख सकते हैं। मैंने पीपीटी में ये वाला नंबर लिया था, तो ये वाला मैंने रिवर्स करके दिखाया। आप ये वाला नंबर भी ले सकते हो, और ये वाला नंबर आपको रिवर्स हो चुका है। अभी उसको रन करके सेव कंप्लीट हुआ है, तो उसे सेव करो। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का 4th प्रोग्राम है। तो P4 लिखो और .cpp से ये प्रोग्राम सेव करो। Now in this way we studied here 4 programs related practical number 4 under practical number 4, and by PPT and by our Turbo C we can learn the today's experiment number 4. So you remember it and perform same way another programs. Okay, now we will stop here. For stop आपको स्टॉप करने के लिए कंट्रोल F में जाना है, Alt X करो, नहीं तो फाइल मेनू में जाके क्विट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बाद में मुझे फोन आते हैं, सर टर्बो सी का स्क्रीन क्लोज नहीं हो रहा है, बंद कैसे करना है। तो मैं इजीली आपको बता रहा हूँ, इजी स्टेप बता रहा हूँ। जैसे कि आपको Alt F में जाना है और ये एरो बटन से ऊपर नीचे करके आपका जो नीचे वाला जो लिखा है क्विट, तो क्विट के यहाँ पे बटन प्रेस करो, नहीं तो आप माउस से भी क्लिक करके यहाँ से क्विट कर सकते हो, नहीं तो कीबोर्ड की थ्रू Alt X बटन प्रेस करके भी आप एग्जिट कर सकते हो। ये करने के बाद आपको ये पास ये स्क्रीन आएगा, यहाँ पे एग्जिट लिखना है। एग्जिट लिखने के बाद आप टर्बो सी कंसोल से भी एग्जिट हो जाओगे। ठीक है, सो इन दिस वे वी studied here our practical number 4, और इसी तरह हमारा आज का जो प्रोग्राम था ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको इसी तरह बाकी प्रोग्राम्स भी याद रखने हैं, करने हैं, तो आप कर लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ।
Now we will stop here.